Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Please see your attendance. This work like once. तभी आपको सारे classes attend करनी है. If there is some reason for it, then you have to inform at the university. It won't work like this. कि आप ये 10 से भी कम बच्चे आ रहे हैं. Please inform your classmates. In class last week, I guess we had started with something very basics in computer network. Computer network क्या होता है? हमने थोड़ा topologies के बारे में पढ़ा था, such as your mesh and star topology, bus topology, right? And we talked about point-to-point connection, right? Then I guess we were to start on ring topology. Ring topology भी simple आपको दिख ही रहा है. It is all the nodes are have a dedicated point with their respective neighbors, right? In आपके जो devices उसके neighbors हैं उनसे एक उसका dedicated connection रहता है, point to point connection रहता है, and it is easy to install and reconfigure, and you can link all these immediate neighbors with physically or logically to form a ring, right? And here also fault isolation is simplified because आपके पास one to one connected है सारे के सारे nodes with their neighbors, so you can identify. But one disadvantage is that कि अगर कहीं पे भी link आपका break होता है क्योंकि ring के form में है तो entire network is going to come down. Then last one is your चार तरह की टोपोलॉजीज पढ़ी हैं. अब आपकी फिफ्थ जो होगी इट इज अ मिक्स ऑफ दीज बेसिक टोपोलॉजीज, आल्सो नोन एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी. हाइब्रिड की बात करें तो आप एक साथ टोपोलॉजीज को मिक्स एंड मैच कर सकते हो. जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने एक स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को कंबाइन कर दिया है, राइट? तो एक आपका सेंट्रल हब है. इस सेंट्रल हब से इंस्टेड ऑफ हैविंग वन डेडिकेटेड डिवाइसेस वी हैव अ एंटायर बस है हमारे पास. एक ये बस है. We have this bus topology, we have another bus link, then we have the third one, and all three of them we have connected to a central hub. इसको आप एक लैब की तरह भी अपनी यूनिवर्सिटी लैब की तरह कर सकते हो. यहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर हो सकता है जहाँ पे different labs which individually may be having bus topologies are being connected to the central hub or the central server, right? So these are some examples of your hybrid topologies. राइट. देन वी हैव नेटवर्क कैटेगरीज. नेटवर्क वो हमारे पास तीन तरह के नेटवर्क के कैटेगरीज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द नेटवर्क. अगर नेटवर्क के साइज के ऊपर हम नेटवर्क को कैटेगराइज करना चाहें तो उस हिसाब से हमारे पास तीन वेज रहते हैं. वन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज योर वाइड एरिया नेटवर्क, and last one or which is somewhere in between LAN and WAN is your metropolitan area network. LAN की बात करी जाए तो it is in small area which can be within a building, within a office or within a campus, right? And its area is within a few kilometers, like less than 2 miles. Then within a LAN ज़्यादातर जो टोपोलॉजी रहती है और जो आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, right, more or less they are same, right? They are being stored on the एक same तरह से connected रहते हैं. Transmission media topology across the LAN it is same, and here most common LAN topologies आपके ring रहता है, bus रहता है, star topologies रहती हैं. And here earlier data rates हमारे पास 4 से 16 megabits तक रहते थे Mbps. Now it can range from 100 to 1000 Mbps. फिर आपका next आया in terms of size is your metropolitan area network or MAN, right? Metropolitan area network आप एक small city या एक town को तरह consider कर सकते हो, right? या अगर बहुत large city है तो it can be divided into different areas, and these when they are connected to the internet, different endpoints of the city, तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जा सकता है, राइट? मेट्रो सिटीज के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए. Then the largest network in terms of size is your wide area network. Wide area network is सबसे उसका common example आपका क्या है? इंटरनेट है, right? Which is expanding as large as your entire world. पूरा वर्ल्ड को जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका वाइडेस्ट एरिया जो नेटवर्क हमारा बैंक का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इंटरनेट है, राइट? एंड देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन योर बैंक, such as your ATM, then you have your switch network vans,
and all these, right? तो we will be frame release रहता है, we will be working, हम जो पढ़ेंगे वो हमारा TCP/IP based इंटरनेट रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके हम लोग डिटेल्स में से देखेंगे. Is it all right? I think this is theoretical part. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए because you have studied this subject in BC also. देन इंटरनेट की बात करी जाए तो मैंने बताया कि आपका ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल की तरह दे सकते हैं, राइट, व्हिच इज कवरिंग द एंटायर वर्ल्ड, दैट्स एज बिग एज इंटरनेट नेटवर्क यू कैन से, right, and started off with the project of ARPANET and now it is being used for all over the world, working on the current TCP/IP protocol, right. इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल क्या आपका वर्क करता है. और अपने टर्म्स सुने ही होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, व्हिच आर ऑथराइज्ड कंपनीज, right, which will be providing you with the services of the internet, right. They can be done by private companies, right. तो आपके कुछ रीजनल एरिया लेवल पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं, कुछ आपके नेशनल लेवल पे रहते हैं. तो इस तरह से आपकी एक हायरार्की फॉर्म होती है और ऑल ऑफ दिस इंटरनेट प्रोवाइडर्स आर गिविंग यू द आईपी एड्रेसेस जो आपको असाइन करे जाते हैं. दे हैव अ ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस विद इन व्हिच एक आपको उस आईएसपी के विद इन आपका नेटवर्क जिस आईएसपी के विद इन लाई कर रहा होता है उनके थ्रू आपको मिलता है योर एक्सेस. यू बी असाइंड एन आईपी एड्रेस एंड विद आईपी एड्रेस यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू योर इंटरनेट, राइट. एंड यू कैन से आईएसपी एक आपका एक कनेक्शन पॉइंट है, एक एक्सेस पॉइंट है, राइट, टू कनेक्ट टू योर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट, राइट. देन again, for terminology purpose, we're discussing the two terms, protocols and standards. We will be discussing a number of protocols under your OSI model. Each layer has got its own set of rules which are going to govern communication between different systems, right. तो दो टर्म्स रहते हैं, एक आपका प्रोटोकॉल होता है और दूसरा आपका स्टैंडर्ड रहता है. स्टैंडर्ड कहा जाए तो इट इज स्टैंडर्ड कोई चीज का एक सेट हो जाता है. स्टैंडर्ड का मतलब दो पार्टीज है जो एक साथ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, दे आर अग्रीइंग अपॉन सम रूल्स, राइट. प्रोटोकॉल का मतलब हो गया जनरल सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर बीइंग आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट systems for communication, right. Any system which is capable of sending and receiving information, right, but it is possible that these two systems may be having different platforms, right. In the syntax अलग हो सकता है, semantics, timings, and all these things are there which they may differ in. तो हमारे पास कुछ की एलिमेंट्स प्रोटोकॉल में होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए which will help in easy communication between these two entities, राइट. तो एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न कर रहे हैं कम्युनिकेशन को कि कैसे और कब और किस तरह से हमारा दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, राइट. सो दैट दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक आपको प्रॉपर सिंटैक्स हो डेटा को शेयर करने के लिए, राइट. देन यू शुड हैव अ प्रॉपर मीनिंग, एक आपका पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए जो कि दोनों पार्टीज इंटरप्रेट कर पाए, right. And there has to be synchronization between the two systems which are communicating in terms of timings also. You have to see कैसा नहीं कि एक बहुत फास्ट सेंड कर रहा दूसरा उसकी कैपेसिटी ना होती इजी रिसीव करने के लिए, तो एक ओवरलोडिंग हो जाए. And you in case of overloading, if the receiver is not able to keep a check on it, so your data will be lost. So we have certain protocols for flow control, we have protocols for error control, right. If we're talking about data link layer, then we also have these protocols at transport layer. So these are a set of rules for easy communication between the two systems. फिर आपका स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कि बताया कि it has become so common for the manufacturers, vendors, agencies, right, certain these rules that they have been agreed upon them, right. तो एक गाइडलाइन की तरह उनको एक रेगुलेशन की तरह प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो वही चीज आपके रूल्स और प्रोटोकॉल्स थे वो आपके स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं. स्टैंडर्ड्स दो तरह के रहते हैं, आपके डी फैक्टो स्टैंडर्ड रहता है, एक डी यूरो स्टैंडर्ड रहता है. स्टैंडर्ड जैसे बताया इट विल बी नॉट नेसेसरली being approved by some organized body. अगर वो कोई भी organized body से अप्रूव नहीं हो रहा है, बस एक agreed rule हो गया है because of its widespread use, then it is said to be de facto standard. It has been agreed upon by all, but it has not been legislated by some international organization, right.
फिर अगर आपके जो रूल्स, ये स्टैंडर्ड्स अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, लीगलाइज हो जाते हैं, लेजिस्लेटेड हो जाते हैं, तो हम उनको डी यूरे स्टैंडर्ड्स कहते हैं। राइट, तो वी हैव प्रोटोकॉल्स व्हिच आर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच जो अगर अग्रीड अपॉन रूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स widespread use so that it becomes the guidelines, तो हम उनको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। डी यूरे और डी फैक्टो दो तरह के आपके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। So for talking about some protocols, so as I said, these are the set of rules governing communication, जिनको हम हर एक layer के according protocols पढ़ेंगे। Then the certain standards which have been recognized through cooperation of different government and creation committees. कुछ standards आपने सुने होंगे, ISO standards सुना होगा, International Organization for Standardization। फिर आपका एनसाई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, राइट। फिर आपका IEEE, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन स्टैंडर्ड्स को लेजिस्लेट करती हैं, राइट। सो यू कैन थ्योरी पार्ट इज देयर, तो थोड़ा सा उसको देखिएगा। देन यू हैव अदर रेगुलेटरी एजेंसीज, राइट, FCC एंड ऑल, राइट, ऑल दीस इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, राइट, RFC एंड ऑल, they are being agreed upon by because of the widespread use। तो ये आपका चैप्टर 1 है फ्रॉम द फॉरिजन बुक, जिसमें हमने बताया वो बेसिक्स डिस्कस करें। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेटा कम्युनिकेशन, राइट, व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए जो कि किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रैवल करेगा। Then very important, we need to have certain protocols for rules to which are going to govern the communication between these two entities। ये rules क्या करेंगे, हो सकता है दोनों सिस्टम के सिंटैक्स अलग हों जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, right, the way of interpretation of data, the semantics might be different, so we need rules which will be helping easy communication between these two entities। We need rules for synchronization of the message from sender to receiver। Then we had talked about data flow, आपका यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल में देयर इज ओनली फ्रॉम वन वे स्ट्रीट की तरह है। एक आपका मेन फ्रेम, जैसे आपका एग्जांपल टीवी टेलीविजन का हो गया, या आपका मेन फ्रेम से मॉनिटर का हो गया, राइट। बाई डायरेक्शनल हो सकता है, उसमें दो केसेस आते हैं जिनको हम बाई डायरेक्शन मतलब डुप्लेक्स बोला जाता है, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। हाफ का मतलब क्या हो गया, बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डिवाइसेस आर केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक बार में एक ही डायरेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल आपका वॉकी टॉकी। लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो लाइक इन टेलीफोन सिस्टम्स, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फुल डुप्लेक्स मोड। Then we had talked what is a network, network किस type के connections that they point to point, multi point। Then we talk about the topologies, which is the geometric representation, how you are going to connect the various nodes in the network। What is a network? Simple nodes को तो आप एक दूसरे से links के through, connection links के through connect कर रहे हो जिससे कि communication हो पाए। So you have various ways, each of these geometric ways to connect your nodes have their own advantage and disadvantage। mesh, star, बस ये सब हमने देखा था, कहीं पे central point of failure है, कहीं पे cost ज़्यादा आ रही है, कहीं पे ports ज़्यादा required है, cabling ज़्यादा cost पड़ रही थी, but it was making it very robust। Some have dedicated connections, some have got a central hub, right, या नहीं, some have a shared link, just like your bus topology single link है, easy रहता है configuration करने में, but fault isolation is difficult, right। So you go through these topologies, you should know their advantage, disadvantage, diagrammatically you should be knowing कैसे कैसे topologies बनती हैं, right। Then hybrid topology which can mix and match। Then we talked about categories of network। Based on the categories हमने किस define करा है, based on the size of the network we have LAN, WAN, MAN, right। and internet की बात करी है, which is nothing but the largest network, largest WAN, which is connecting devices across the globe, right। and how it is being done, we have certain internet service fee or international or ISPs, which are your net internet सर्विस प्रोवाइडर्स, जो आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं जो आपको आईपी एड्रेस पर मतलब कनेक्ट करने के लिए दे विल बी असाइनिंग यू एन आईपी एड्रेस एंड दैट विल बी योर एंड आल्सो गिविंग यू द एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट टू दिस ग्लोबल नेटवर्क, राइट। सो आपकी आईएसपी रीजनल लेवल पे हो सकती हैं, नेशनल लेवल पे हो सकती हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। protocols में we were talking about a number of protocols based on your OSI model, जो हमने layer wise इन set of rules को उनकी functionality के base पे divide कर दिया है।
And standards are there which are nothing but the agreed upon rules which have been agreed by some, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको लेजिस्लेट कर दिया तो हम उसको डिजोरे स्टैंडर्ड बोलते हैं. अगर सिर्फ बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस दे हैव बीन सो कॉमनली यूज्ड कि वो उनको लेजिस्लेट करने की जरूरत नहीं है, बट दे आर वाइड स्प्रेड यूज की वजह से दे हैव बीन अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड्स, तो आपके डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं. We will be starting with the second chapter now. हम बात करेंगे network models की. In the first class also we had talked about, we'll be discussing the two network models here. One is your NSI model and your second is your TCP IP model, जो कि WOSI मॉडल से पहले आया था. तो इससे पता है कि इन जो आपका नेटवर्क है उसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स are the ones which will be consisting of the instruction sets for easy communication, and these instruction sets are governed by the set of protocols, right? Then hardware part you already know is आपके क्या होंगे, these are the physical equipments which are required for carrying signals from one point in network to the other one, right? So similarly इन अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में बात करें, अगर आपको दो दो लोगों को आपस में बात करना है थ्रू द हेल्प ऑफ लेटर्स और मैसेजेस, तो आप उसको कैसे कैसे कर पाओगे? देयर यू हैव टू यूज योर पोस्टल सर्विसेज, राइट? पोस्टल सर्विसेज, द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ लेयर्ड वे, इन अ स्टेप बाय स्टेप वे. अगर आपको कहीं किसी को लेटर भेजना है तो आपका तरीका क्या रहता है? यू हैव टू राइट योर लेटर ऑन पेपर, यू हैव टू प्लेस इट इन एन एनवेलप, you have to place it in a mailbox, right? फिर इस mailbox से it will be picked up by some postman to a carry to a post office, right? फिर उस post office से it will be delivered to the receiver's post office, right? And then from the post office उसके खुद के mailbox में जाएगा. फिर उस mailbox से you have to pick up the letter, you have to remove the envelope, and you have then only then you can read it, right? So what are the three things here? If you can see, आपका एक सेंडर है, आपके पास एक रिसीवर है, और एक आपका कैरियर है जो कि आपके लेटर को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाने में हेल्प करेगा, राइट? एंड हियर आल्सो यू कैन सी देयर इज इट इज अ लेयर्ड अप्रोच. ये आपका जो टास्क हो रहा है एक लेयर वाइज वर्क कर रहा है, जिसमें आपके कुछ हायर लेयर्स हैं, कुछ मिडिल लेयर्स हैं, कुछ लोअर लेयर्स हैं. हायर लेयर्स क्या होंगे? जो कि डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर से इंटरैक्ट करें, राइट? जो आपको हेल्प करें. जैसे अगर आप ईमेल की बात करें तो आपका हायर लेयर एप्लीकेशन क्या हो सकती है? दिस कैन बी your if you're talking about web based mail services, तो ये आपका जीमेल का ब्राउजर हो सकता है. ब्राउजर के थ्रू जब अपनी मेल्स को कंपोज करते हो, इट इज काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन थ्रू व्हिच are able, the user is able to interact, right? आप अपने emails को compose करते हो, then emails will be carried by from application layer, they will be going through your lower level layers, जिसमें हर लेयर का काम क्या रहेगा? कुछ ना कुछ वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा. आप उसको एनकैप्सुलेट करोगे एक एनवेलप में, और हर लेयर के थ्रू जैसे जैसे चीजें जा रही हैं, आप एनवेलप में क्या क्या लगाते हो? तो पुट अ स्टैम्प, यू हैव टू पुट दिस सोर्स एड्रेस, जहाँ जिसने भेजा है उसका एड्रेस पड़ता है, जिसको भेज रहे हो डेस्टिनेशन का एड्रेस पड़ता है, राइट? ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन ऑन द लेटर ऑन योर एनवेलप. तो यहाँ पे लेयर्स का भी ये काम रहेगा, हर लेयर अपनी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐड करेगी एनवेलप में, जिससे कि आपका लेटर सही तरह से आपका मैसेज पहुंच पाए ओवर द नेटवर्क फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, राइट? तो एक डायरेक्शन सेंडर के केस में क्या रहेगा? हायर लेवल, जैसे आप एप्लीकेशंस की बात कर सकते हो, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इट विल बी मूविंग टू द लोअर लेयर. लोअर लेयर मतलब जो फिजिकल लेयर है, जो कि एक्चुअल आपका फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर मैसेज टू ट्रैवल. बट इन केस ऑफ रिसीवर यही चीज रिवर्स वे में होगी. रिवर्स वे में कैसे होगी? लोअर लेयर से आपका जो कैरियर है वो आपका लेटर उठाएगा आपके पोस्ट ऑफिस से, फिर पोस्ट ऑफिस से आपके मेल बॉक्स में आएगा जो कि मिडिल लेयर की तरह वर्क कर रहा है. देन इट विल फाइनली रीच टू योर एप्लीकेशन. अगर आप जैसे ब्राउजर पे अपना जो भी मेल्स आती है रिसीव होती है, आप उनको इनबॉक्स में चेक कर सकते हो. उसी तरह से जिस तरह से पहले पोस्टल सर्विसेज यूज होती थी, आपके एक बार मेल बॉक्स में आ गए, यू कैन पिक इट अप. अगेन आपको हर काम रिवर्स में करना पड़ेगा. हियर यू हैव टू ओपन द एनवेलप, चेक योर एड्रेस, यहाँ जो आपका डेस्टिनेशन है जिसके लिए उसी के लिए ये लेटर आया है. देन यू कैन पिक इट अप
and open and read the actual message. So we are working in a hierarchy. These activities are occurring in a proper hierarchy. जो टास्क और ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो सेंडर टू रिसीवर मैसेज को सेंड करने का एक hierarchical स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, right? So this these services when you are placing it in the form of layers, राइट जब आप इनको लेयर्ड अप्रोच में इन सर्विसेज को प्लेस करो किस तरह से कि जो भी आपकी हायर लेयर लेवल लेयर्स हैं दे विल बी यूजिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेवल लेयर्स, जैसे कि हायर लेवल लेयर्स जैसे कि आपके एप्लीकेशन लेयर्स जो कि डायरेक्ट यूजर से इंटरैक्ट करती हैं वो उनको अपने जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनकी सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा, ओनली देन दे विल बी एबल टू your message will be carried successfully from your source to the destination, right? तो इसीलिए इसको हम hierarchical structure क्यों बोल रहे हैं क्योंकि your this task of sending a letter from the sender to receiver requires your higher level layers to use the services provided by the layers immediately below it. उनके जो below layers हैं उनकी services use करके ही आपका data communication possible हो पाएगा. तो इसको आप एक लेयर्ड मॉडल की तरह पढ़ सकते हो. यू कैन गिव अ लेयर्ड मॉडल व्हिच विल बी governing the data communication, and when you are studying it in a hierarchical manner, right, in layered approach से ये जो task of sending and receiving the messages हो रहा है तो we have been given certain इन्हीं को हम क्या बोलते हैं network models कहते हैं, right? एक जो हमारे जो simple activities थी letter send करने की अगर हमने उसको थोड़ा analyze करा तो we see that there is a hierarchical structure layered structure being followed, right? So this has given us two network models, right? And one is your OSI model, which has become the एक standard set कर दिया है data communication के लिए, right? And the other one is your TCP/IP protocol suite, right? Which is the most practically used model जिसपे आपका internet based है. And OSI model में बहुत ज़्यादा restrictions दिए थे in terms of your layers and interfaces, so it is not a very practical model, but it is a standard to study. अगर आपको कोई models का protocols का working देखना है तो आप OSI model से ही उनको understand कर सकते हो. Any doubt till now? कोई doubt? अजय पाल? No. The first model we are going to study is your OSI model, which was given by your ISO जो आपका organization था. It gave us this covering all aspects of data communication, network communication. It gave us a model known as your open system interconnection model, right? आपका ये OSI model आया था जो कि एक layered framework हमको दे रहा है अपने कोई भी network systems को डिजाइन करने के लिए और हर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. And since you have already studied, you already know that OSI has got your 7 layers, and each of these layers have been placed in a hierarchy in such a way कि जो भी higher level layers हैं, they have to use the services of the lower level layers, right? And based on that, you must have studied about the 7 layers of the OSI model. These are considered to be your higher level layers, right? ये आपके मिडिल में आते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स जो कि गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन व्हेन डिवाइसेस आर ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट? लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करके पोर्ट नंबर्स आप प्रोवाइड करके, राइट, जिसको हम सॉकेट एड्रेसिंग भी बोलते हैं, राइट? एंड दीज आर योर लोअर लेवल लेयर्स व्हिच विल बी रिस्पांसिबल फॉर द your actual physical connection between your sender and the receiver, right? Talking about the physical layer, data link layer will be responsible for your hot to hot delivery within the network, right? But within the network, same network में अगर आपको work करना है तो you will be working on the data link layer. जब आप दूसरे network में कोई message को भेजना चाहते हो तो आपको network layer पे आना पड़ता है. Network layer की बात करी जाए, you have to use some logical addressing which will be helping in easy transmission of the message to the right destination. Because it is such a large network, we have to form certain hierarchical structure में हमें अपने addresses को रखना पड़ता है जिससे कि जो fastest route हो, जो fastest way हो, उसके थ्रू आपका message पहुंच पाए.
right? Coming for your data link layer, that was not a requirement. और जो उनका MAC address है, जो physical address रहता है, for every device we have two addresses associated. एक उसका physical address रहता है, या MAC address रहता है, जो कि lower level layers use करती हैं. It is working within the network, right? The next is your, and this physical address is being provided by your NIC, your जो आपका manufacturer रहता है. आपने देखा होगा आपके NIC chip में provide पड़ा रहता है. The logical address is the one which is being assigned to you when you are connecting to the internet. जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपका ISP कोई ना कोई आपको IP एड्रेस असाइन करता है, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सली दिस इज अ यूनिक एंड यूनिवर्सल नंबर जिससे आप आइडेंटिफाई होगे अक्रॉस द ग्लोब, राइट? तो ये आपका नेटवर्क लेयर पे हम पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी जाए, जब आपका आइडेंटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग ऑन द ग्लोबल इंटरनेट हो गया, आपके तक अगर आपका नंबर मुझे पता है, आपका IP एड्रेस मुझे एड्रेस पता है, then I will be able to send my message. Once it reaches the destination, then we have to see it is for which application, right? एक बार जब मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस एप्लीकेशन के लिए मैसेज आया है. एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन, आपने सुना होगा हर एक एप्लीकेशन अलग अलग पोर्ट नंबर पे चलती है. एवरी एप्लीकेशन हैज गॉट एन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, राइट? तो आपका जो पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, कि एक बार डेस्टिनेशन आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंच गया, तब हमें देखना है किस पोर्ट पे जाना है, किस प्रोसेस के लिए आया है, तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करता है. Concession and presentation layer, in detail, it is not required in your syllabus. And final, the layer which we will be discussing in detail is your application layer, the topmost layer जो user से direct interact करती है. Again, this is in a layered architecture, right? Layered architecture in the sense कि हर एक layer के साथ associated उनके अपने set of rules हैं, protocols हैं, जो कि उस layer के फंक्शनैलिटीज को यूज करने में हेल्प करेंगे, रूल्स आपको देंगे कैसे आप यूज करो. देन ईच ऑफ दीज लेयर्स फंक्शनैलिटीज आर वेरी वेल डिफाइंड, राइट? एंड आपस में इनके बीच में इंटरफेसेस भी एडजेसेंट लेयर्स के बीच में बहुत ही क्लियरली वेल डिफाइंड रहते हैं. इन केस ऑफ योर OSI मॉडल, राइट, आप मिक्स नहीं कर सकते हो किसी भी लेयर की फंक्शनैलिटी दूसरे लेयर के साथ. इंटरफेसेस आर वेरी वेल डिफाइंड, right? And your higher level layers, your top layer layers are responsible for your process to process, and मतलब they are working on your peer to peer network. Peer to peer network पे work करते हैं, उनके peer to peer protocols कहते हैं. जो हमारी lower layer layers हैं, like your data link and your physical layer, right? They will be working at your lower layers, and इस अगर आप सेंडर के एंड पे बात करें तो आपको मैसेज इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू डाउन, राइट? आपका फिजिकल कम्युनिकेशन थ्रू योर फिजिकल चैनल विल बी हैपनिंग टू योर फिजिकल लेयर. आपका मैसेज टॉप टू बॉटम कैसे मूव करेगा? आप एप्लीकेशन लेयर के थ्रू विल बी राइटिंग योर मैसेज, कंपोजिंग योर मैसेज. It will be traveling through the various layers. Each and every layer will be placing their own information on it, and then through the physical channel, through the physical communication link, it will be traveling across the network. Right, within the networks, if it is on different networks, आपके intermediate nodes भी रहते हैं, right, such as your routers, which will be forwarding a message to the right, in the right direction. Right, these routers usually they work in the तीन जो आपके lower तीन layers हैं, right, उनके level पे ही आपका काम चल जाता है. जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनके 3 लेयर्स, तो फिजिकल डेटा के लिए उनको एप्लीकेशन तक के तो जाना नहीं है, बस उनको देखना है कि आपके मैसेज को कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, राइट? दे डोंट हैव टू वर्क ऑन द प्रोसेस. तो आपके जो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके प्रोसेस लेवल पे वर्क करती हैं, एंड टू एंड डिवाइसेस पे. एंड योर बॉटम थ्री योर layers, your physical data link and network layer, they are also being used by intermediate nodes. If we're talking of two systems, they are on different networks. तो आपके routers वगैरह physical layer, data link layer, network layer, इनपे ज़्यादा work करते हैं. It is also possible कि आपके जो system है वो भी इस router की तरह work करे on other systems, and they will be having upper layers also, but for forwarding of the message in the right direction, only your below 3 layers are required, right? And we have the top ones, as I said, they are your peer-to-peer processes के लिए use करते हैं, right? And
these layers, we will be seeing how what are the protocols given at each and every layer. Then as I said, अभी जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया था लेटर का, तो लेटर को आपको एनवेलप में रखना होता है, एनवेलप में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, जैसे बोलो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, या फिर सर्टेन स्टैम्प्स, राइट, ये सारी चीजें आपको पढ़ते हैं. सिमिलरली हियर आल्सो इन ओएसआई मॉडल, एक तो आपका डेटा पार्ट है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, फिर आपके पास कोई ना कोई हेडर इन्फॉर्मेशन रहती है, हर लेयर कोई ना कोई उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करती है for the below layers, and this additional information will be helping in exchange of data between the sender and the receiver. तो हर एक लेयर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करेगी. हम देखेंगे हर एक लेयर का हेडर इन हेडर फॉर्मेट्स कि क्या वो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, राइट. Then at your data link layer, we have another special part which is also known as the trailer part. एक header part तो आपका हर layer ऐड ही कर रही है, encapsulate भी हो रहा है एक तरह से डेटा. देखिए आपका जो पहले header information application layer की थी वो encapsulate होकर lower layer में आ रही है, which will become its data part, and it will be adding some of its own additional information. इस तरह से हर layer पुराने अपने above वाले layer के information को ले रही है, उसको encapsulate कर रही है, right, and it will be adding some of its own header information to the data portion which is being received by the previous layers, right. And in this way it is encapsulation is being happening, and then finally आपका जब data link layer में कुछ और trailer information हम add करते हैं, it will be placed on your physical channel or your transmission media with the help of your physical layer, right, that is responsible for your physical characteristics of your interfaces and medium. So we will be studying each one of these layers in details. In the 4 layers, we will be discussing data link layer, network layer, transport layer, and application layer. In this chapter, थोड़ा सा briefly, we will talk about all layers. What are the different functionalities there? I guess last 10 minutes of them just mark your attendance. तो अगर OSI मॉडल के अब हर एक लेयर्स के बारे में थोड़ा सा we will be getting a brief, right. So coming to your सबसे जो lowest layer आपके OSI मॉडल में आती है, that is your physical layer, right, which is governing the physical characteristics of the medium and the interfaces. तो यही लेयर है जो कि कोऑर्डिनेट करती है आपके बिट्स को स्ट्रीम करने के ओवर द फिजिकल चैनल. जो आपके फिजिकल मीडियम है और आपके बिट्स कैसे ट्रैवल करेंगी, मीडिया के थ्रू रीच करेंगी, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर, राइट. एज अ सेड लोअर लेयर जो लेयर्स हैं आपकी लोअर लेवल की, दे विल बी रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द above layer and providing the services to the above layers. Physical layer के ऊपर हमारी कौन सी लेयर आती है, हमारी डेटा लिंक लेयर आती है, राइट. तो ये डेटा लिंक लेयर से जो भी मैसेज आ रहा होगा उसको लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, अपनी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा. वी विल सी व्हाट दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी, एंड it will be placing those bits over the medium. So it is be converting. आपका ये क्या है, डिजिटल डेटा है जिसको एनालॉग सिग्नल्स में, देखिए ट्रैवल आपका मीडिया में एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में करेगा. इट कैन बी your wired media, wireless media, whatever it is, and then analog signals will be traveling over the transmission media. Again, they will be converting into your digital data in the form of bits, and अपना header information जो भी है उसको ये remove करेगा and data part को उसके data link layer में provide करेगा. Then data link layer will see how we have to further send the message to your above layers. Right, so here it is responsible for your जो आपके बिट्स हैं, जो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स हैं, उनके इंडिविजुअल बिट्स को कैसे वो मूव करेगा थ्रू द ट्रांसमिशन चैनल फ्रॉम वन नोड टू द अदर, एक नोड से दूसरे नोड के थ्रू कैसे आपके मैसेज को वो सेंड करता है. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली, इंटरमीडिएट डिवाइसेस के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकते हैं. तो ये फिजिकली कैसे इन ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू आपके डेटा को प्लेस करेगा, कैसे भेजेगा, दैट इज बीइंग कवर्ड बाय योर फिजिकल लेयर.
राइट इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, प्लीज गो थ्रू दिस फंक्शनैलिटीज एंड आई वुड से प्लीज गो थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक such as your mainly I'm using Horizon, आप Tannenbaum से भी देख सकते हो. So you should be very clear with the functionalities of these layers. The first layer which we discussed is physical layer. बताया आपके कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज कर रहे हो, राइट डिफाइन कर रहे हो बिटवीन योर सेंडर एंड रिसीवर. दिस दैट विल बी its responsibility. Then how you are going to represent the data in the form of bits of streams, that it will see कि कैसे हम अपने bits को कन्वर्ट करें, इम्पोर्ट करें to send it over the channel in the form of, क्योंकि चैनल में कोई ना कोई ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपके सिग्नल्स ट्रैवल करेंगे, उसको देखेगा. देन इट विल बी सीइंग द डेटा रेट और द ट्रांसमिशन रेट, किस रेट से हमें बिट्स को सेंड करना है, राइट ड्यूरेशन ऑफ अ बिट कितनी टाइम तक वो लास्ट करेगी. देन इट विल बी सीइंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स कि आपका सेंडर और रिसीवर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है बिट्स को सेंड करने की, रिसीव करने की, वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए. इट विल बी सिंक्रोनाइजिंग द क्लॉक्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, राइट. Then it will be responsible for the physical topology of the network, क्या हमें रखना है, मेन नेटवर्क को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है. Then it will be also taking care of your transmission mode, कि आपका डेटा फ्लो किस फॉर्म में रहेगा, सिंगल, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स. All these things will be, जितने भी physical characteristics of transmission media आप सोच सकते हो, that will be governed by your physical layer. Yes, less than 1 minute is there. So next class we will be discussing about the other layers like your नेक्स्ट लेयर विल बी योर डेटा लिंक लेयर. उनकी फंक्शनैलिटीज प्लीज होराइजन बुक से देखिएगा, उसको पढ़िएगा, टैननबॉम से रेफर करिएगा. ओएसआई मॉडल के लेयर्स के बारे में सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे.